Assalamu alaikum and good evening, viewers. I hope you all are doing fine. And welcome once again to my channel FAH. And as you all know, that every week in Tuesday Talks, we actually decide and arrange different topics for a little bit of a discussion. And for that purpose, we invite industry experts and people who belong to that area in particular to join us so that they can share their insights, they can share their experiences with us. And the most top of all, the most important part is that anyone of us is planning to follow the same path can learn from their experiences, the challenges they have faced, how they have been successful, and all that. Now, today, our topic is very much different from our course of discussions earlier, like fintech and Bitcoin and blockchain. Today, we decided to have a little bit of a discussion on the women empowerment, the contribution of women in the economy, in our culture, and at a country as a whole. That how important women empowerment and women contribution towards the national exchequer and our country is important. So, what are the challenges are being faced by women, by ladies in daily life, professional lives, personal lives? What are the challenges they face? What are the what I can say in way that difficulties actually they face in their daily lives. For that purpose, today I have requested and invited a young personality who is involved in a number of projects. She's working on the professional capacity also, whereas an extracurricular and on humanitarian grounds, uh, working on many projects which are related to the social development and in particular for the women empowerment. So I have invited Ms. Kinjar Khoso today on my show. Kinjar has a vast experience and a young entrepreneur also. And Kinjar currently is associated with Bahria Town, Karachi. And so that is why we see that Bahria Town is changing day by day. So I'm sure the brain behind it is Kinjar. Kinjar also has an association with our current government, Pakistan Tehreek-e-Insaf, and she is also involved in education and training for the social development of the Sadr Town area. Kinjar is also a powerful motivational speaker. She has been speaking on a number of forums in terms of motivational trainings and giving lectures and all that. Plus, she was also involved with another initiative which is known as Khwabon Ki Parwaz. And now, all these details we will ask Kinjar to give a brief to us by herself. So, that is going to be much better to hear right from the horse's mouth. So, I welcome Kinjar. Thank you very much for coming. Thank you so much. Thank you for inviting and considering How me are here. you? I'm good. How are you? Great. I'm fine. Perfectly fine. So, Kinjar, I would like to request you that I have given a little bit of an introduction of yours. Yeah. Now, for the ladies in particular, like today's show is dedicated to the ladies, women, female, uh, gender of our community and our society and our culture. तो आप अपना बैकग्राउंड जो है कैसे आप यहाँ तक कर रहे हैं, किस तरह के आपको चैलेंजेस फील हुए? माशाल्लाह यू आर अ वेरी गुड मल्टीटास्कर, or apart from your professional life you are involved in so many social initiatives. तो किस तरह Yeah. से मैनेज करते हैं, किस तरह के challenges आपको फेस करने पड़े शुरू में, and how did you माशाल्लाह reach to this point so far? Well, challenges सिर्फ स्टार्ट में नहीं अभी तक आते हैं and I think वो आते रहेंगे because जब आप पॉलिश होते रहते हो so challenges बहुत फेस Kinjal, करने के बाद Kinjal, sorry to interrupt you. You are not audible. There's a distortion in your voice. Yeah, hello. Now Is now it it's fine clear. now? Now
Yeah, now it's fine. Yeah, so I was saying कि challenges तो हमेशा आते रहते हैं. It's not कि start में आपको challenges आए हैं and then आपने सब कुछ achieve कर लिया. It's not like that. हर process में there's a process of learning. So you learn at every step. तो शुरू में अलग एक challenges थे, बहुत अलग थे जब मैंने career start किया था. कोई एक बड़ा challenge था जिसके बाद I stepped into this, career और फिर यूँ start करते करते फिर उस करियर में आपको challenges आते गए. आपने बहुत सारा पिछले आई थिंक इट्स बीन लाइक 2.5 years और तब से मैं 3 काम एक साथ कर रही हूँ. तो आई रिमेम्बर आई वेंट टू फॉर एन इंटरव्यू और उन्होंने कहा मेरी सीवी देख के और मुझे कहा कि आप तो 3 काम एक साथ कर रही हैं और डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉइंट. आई सेड नो, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट बिकॉज आई कैन मैनेज एवरीथिंग. और अल्लाह का शुक्र है अभी इतना 2.5 साल हो चुके हैं बट आई एम मैनेजिंग. पहले एक काम नहीं होता था, फिर 2 पकड़े, फिर 3 हुए एंड देन स्टार्टेड इस तरीके से. तो या चैलेंजेस आते हैं, बीइंग अ गर्ल बहुत चैलेंजेस आते हैं, बिलोंगिंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली बहुत चैलेंजेस आते हैं. और लोग हैं आपको तंग करते हैं, एनवायरनमेंट ऐसा है हमारा, सोसाइटी हमारी ऐसी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दैट यू हैव टू बी रिबेल. आई वुड यूज दिस वर्ड रिबेल इन अ वेरी पॉजिटिव वे, क्योंकि अगर आप रिबेल नहीं बनेंगे तो आप अपने ड्रीम्स भी अचीव नहीं कर सकेंगे. और ड्रीम्स मेरे नहीं हैं, ड्रीम्स मैं चाहती हूँ कि लोगों के ड्रीम्स पूरे हो, तो मुझे होता है कि अल्लाह ताला मेरे ख्वाब खुद ही पूरे कर देगा. Inshallah. Uh, Going forward, this session is dedicated to the ladies, as I said mentioned earlier. या खवातीन अगर कुछ अपने questions और डालना चाहें तो feel free to ask us as many questions and take this opportunity for having a young personality Kinjar on board. तो वो अपने experiences आप लोगों के साथ share कर सकेंगी. Kinjar, my next question is कि you're already a professional lady. या So what made you think, or what made you that you go in diversify your field also, कि अपने प्रोफेशनल करियर के साथ साथ इतनी जो आपने सोशल और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप, ये इसकी क्या एक आपको आई मीन हाउ व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि आपको ये भी करना चाहिए? मैं आपको सच बताऊं कि मैंने खुद कुछ नहीं सोचा था. ये है कि मैं एक जॉब करती हूँ, आई गेट बोर्ड, आई कैन नॉट सिट लाइक एक चेयर पे, टेबल हो सामने, लैपटॉप हो एंड आई कैन नो. आई ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन रोड्स. मुझे ऐसी जॉब चाहिए थी, मैं बाहर घूमूं, बाहर के काम करूं. तो आई वाज शुरू से मेरा यही होता था. बट जितनी भी मैं करियर दूसरी प्रोफेशनल से हट के चीजों में आई हूँ, मैं लाई गई हूँ. मैं खुद नहीं आई हूँ. पीटीआई में माय बॉस जो मेरे सीईओ होते थे उस टाइम पे, ही वाज एमपीए थे, या उस टाइम उनको पोजीशन मिलने वाली थी, टिकट मिली थी, तो ही आस्क्ड मी कि तुम आओ हमारे साथ काम करो. सो इसी तरीके से मैं उसमें लाई गई, मैंने उनके साथ काम किया. और फिर काम करते करते उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेटर का कहा कि नहीं, यू हैव टू बी माय कोऑर्डिनेटर बिकॉज यू आर वर्किंग रियली गुड, इस तरीके से. दूसरी मेरी पोजीशन इसी तरह मैं पीटीआई में आ गई. तीसरा सेकंड में आई वाज वर्किंग विद स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड आई यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग्स फॉर समवन, लाइक फॉर अदर ट्रेनर्स. फिर उस पे मुझे कहा गया योर स्ट्रेंथ इज दैट यू स्पीक रियली वेल, व्हेन यू स्पीक पीपल हील, which was a very big statement for me. बट मैंने कभी इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया. आई गॉट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम किसी डिफरेंट ट्रेनिंग, उससे उन्होंने कहा कि आप आएँ, ट्रेनिंग कराएं, ये कराएं. मैं बिल्कुल भी नहीं, मुझे स्टेज फ्राइट था, मैं नहीं जा पाती थी. तो वो भी मैं लोगों की वजह से आई. मैंने 1 ट्रेनिंग की, 2 ट्रेनिंग की, 3 ट्रेनिंग की एंड इट एक्चुअली वर्कड आउट. लोगों ने मुझे कहा कि यार नहीं कींजर, जब आप कहती हो, जब आप बोलती हो, बिकॉज आई कनेक्ट इमोशनली विद पीपल. जितने मेरे एक्सपीरियंस है इतने तो नहीं है, आई एम जस्ट 29, पर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, मेरी एज के हिसाब से जो भी मैंने एक्सपीरियंसेस किए. इसी तरीके से हेल्प अस हेल्प कराची एक ऑनलाइन हमारा फेसबुक ग्रुप था. वो मेरे दोस्त का इनिशिएटिव था. उसने मुझे कॉल की, किंजर यार हम घर पे बैठे हुए हैं, तो तुम्हारा सोशल सर्कल बहुत है, मेरा बहुत है, लेट्स हेल्प 50 फैमिलीज. एंड इट वेंट टिल 4,000 फैमिलीज. तो इट्स लाइक लोगों ने पुश किया. एंड ऑलवेज थिंक, मुझे कोई कॉल भी करता है जैसे कि यार ये चीज है, मेरे दिमाग में आई है कि किंजर कैन डू इट. सो कभी भी आज तक मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे अंदर कोई थॉट आई हुई हो कि मैं कहूँ. कुछ ना कुछ हमेशा हुआ है, या कोई लोग आए, कोई हादसा हुआ है, कोई चीज हुई है,
तो कुछ ना कुछ उसमें से, आई ऑलवेज सी अ पॉजिटिव साइड। बेशक इतना नेगेटिव होता है, लेकिन मुझे ये पता है कि जब आपके साथ कुछ बुरा हो या कुछ ऐसा नेगेटिव हो, दिस ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड, कुछ पॉजिटिव जरूर आने वाला होता है। तो मैं उसको ढूंढने में लग जाती हूँ हमेशा कि अल्लाह ताला मुझसे क्या कराना चाहते हैं। परफेक्टली, साउंड्स गुड। तो कमिंग टू द मेन पॉइंट किंजर, काफी अरसे से हम एक चीज को सुनते चले आ रहे हैं, आपने भी सुन रही होंगी, हम भी सुन रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट। एक लेमैन लैंग्वेज से जरा हम मर्द हजरात को, फॉर एग्जाम्पल, जरा आप ये समझाने की कोशिश तो करें ये विमेन एम्पावरमेंट है क्या। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, हमारे यहाँ पहले औरतों को इस तरह की इजाजत नहीं होती थी। बीइंग इंडिपेंडेंट अच्छा नहीं माना जाता था। कहा जाता था घूम रही है बाहर, जॉब करेगी तो देखना तुम्हारे हाथ नहीं आएगी, तो लव मैरिज ही करेगी क्योंकि बाहर जॉब करिए। बहुत सारे टैबूज होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, हमने भी सुनी है, मैंने भी बहुत सारी चीजें सुनी है। जो भी है, आपका फौरन आपके करियर पे बात आ जाती है। एक मैं एग्जांपल आपको अगर दूं कि एक मर्द जब जॉब कर रहा होता है, तो जब उसको कहीं छुट्टी चाहिए होती है, तो हमारे घर वाले बड़े परेशान होते हैं। वो समझते हैं, वो कहते हैं यार मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तो वो कहते हैं कि अच्छा, हाँ अच्छा चलो ठीक है, फिर हम अपना प्रोग्राम एक्सटेंड कर देते हैं। यहीं पर अगर एक औरत हो और वो कहे कि यार मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, तो कहते हैं हाँ तो क्या है, छोड़ दो जॉब, तुम्हें क्या जरूरत है। सो ये एक माइंड सेट है कि हम लोग अभी भी उस चीजों को बहुत डिफरेंट, उसके एम्पावर होने का मतलब ये नहीं है दैट वी डोंट नीड मैन। इट्स नॉट लाइक दैट फॉर मी। जो मैं सोचती हूँ, जो ये फेमिनिस्ट हैं, जो फेमिनिज्म है, ये तो एक अलग ही टॉपिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मर्द ही नहीं चाहिए या मर्दों की एक वैल्यू नहीं है। मर्दों की अपनी वैल्यू है, मर्दों का एक अपना मुकाम है, एक अपनी वो है। हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। खुदा ना खास्ता कपल है, मेरा हस्बैंड है फॉर इंस्टेंस, और उसको रात में कुछ हो जाता है, मुझे इतना एम्पावर हो कि मुझे गाड़ी चलाने आनी चाहिए, मैं रात में करीम को ना बुलाऊं, मैं किसी से पूछूं ना कि यार मुझे ड्राइवर चाहिए, मैं अपने भाई को कॉल ना करूं। मैं इतनी एम्पावर हूं कि मैं गाड़ी उठाऊं और उसको ले जाऊं। ठीक है, हमारे घर में अगर मैं इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, अगर हम इस तरीके से सोचें, तो औरतों का एम्पावर होना बहुत जरूरी है। जिस तरह के आजकल के हालात हैं, जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की चीजें हैं, अब एक से घर भी नहीं चलता। फाइनेंशियल हो गए, इमोशनल हो गए, उस तरह हमारे दिमाग में शुरू से एक माइंड सेट है कि यार औरत घर के लिए बनी है, किचन के लिए बनी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। औरत हर चीज कर सकती है, आपका घर संभाल सकती है, आपकी बाहर की चीजें, आप उसको एम्पावर करो, आप उसको थोड़ा सा, कहते हैं ना, थोड़ा सा फ्यूल डालो ना, तो वो इतना अच्छा आपका साथ देगी, इतना अच्छा आपके साथ चलेगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। नहीं, उसके अंदर बिल्कुल डेफिनेटली आई एग्री विद यू 100%। और वी हैव renowned names internationally so as locally हमारे कल्चर के हिसाब से भी, जहाँ खवातीन has done wonders rather I'll say। या आप इस करंट पेंडेमिक के अंदर देख लें कि द बेस्ट कंट्री विच हैज कोप अप विद कोरोना वाज न्यूजीलैंड, या एंड द प्राइम बिकॉज ऑफ मिनिस्टर ऑफ द न्यूजीलैंड वाज जसिंडा आर्डन। या और नाउ शी, दुनिया उनको फॉलो कर रही है कि किस तरह से उन्होंने कोरोना के ऊपर काबू पाया। हम्म और आई गेस न्यूजीलैंड इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम विच इज कोरोना फ्री। या तो इसी तरह से हमारे पास भी एग्जाम्पल्स हैं। आप फातिमा जिन्ना मोहतरमा हम्म की एग्जाम्पल बिल्कुल बहुत बड़ी मौजूद है। राना लियाकत अली खान की मौजूद है हमारे पास। उसके अलावा मदर टेरेसा थी। तो या अब मुझे एक चीज ये बताएं कि इसके लिए कि क्या हमें ये प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है। देखें, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मोहतरमा फातिमा जिन्ना। उनको इस तरह से किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत तो नहीं थी ना अपने आप को लॉन्च करने की। या राना लियाकत अली खान थी, हम्म मदर टेरेसा थी, कि उन्होंने अपने आप को एक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया और रैलियां निकाली हो, हमारे हकूक हमें दो और ये हो वो। नहीं नहीं क्योंकि नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से कि खवातीन के जो हकूक हैं वो तो 1400 साल पहले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिए थे। बेशक बेशक। ठीक है ना। उससे पहले तो आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री क्या, मतलब दुनिया की हिस्ट्री ये थी कि खवातीन को बच्चियां पैदा होती थी उनको मार दिया जाता था। जी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में, उन्होंने उनको सबसे पहले जीने का हक दे दिया। हम्म तो अब ये एकदम से हम क्या ये चीज नोट करते हैं कि वेमेन एम्पावरमेंट को अब जो एक टैग सा लग गया है, या
हम देखिए, बड़ा आई देखते हैं। आई थिंक वेरी डिफरेंटली। मुझे लगता है कि औरत चीख के नहीं मना सकती खुद को, अपने काम से मनवा सकती। औरत क्या, कोई भी इंसान। आप चीख चीख के दुनिया को बताओगे यार मुझे मेरे हक दो, मुझे मेरे हक दो, मुझे मेरे हक दो, कुछ लोग तरस खाएंगे, ठीक है, कुछ लोग गालियां देंगे, कुछ लोग बोलेंगे यार रोड पे निकल आई, हजार किस्म के, वो पर एक कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। मनवाना है आपको, आप अपने आप को मनवाओ, आपका जो करियर है, आपके जो प्लान्स हैं, आप उसको पूरा करो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो। क्या चीज नहीं है इस दुनिया में जो अब मुश्किल से हो रही है? ऑनलाइन हर चीज हो जाती है, हर चीज आपको मिल जाती है। आप टिकटॉक के लिए फोन ले लेते हो, तो आप अपने ड्रीम्स के लिए भी तो फोन ले सकते हो। इंटरनेट किसके घर पे नहीं है? ठीक है, वो जमाना और था कि कैफेज पे जाके बैठ के आपको काम करना पड़ता था। आपको जहां पर प्रॉब्लम होती है, सोल्यूशन भी आपको वही चीज देती है। अपॉर्चुनिटीज भी आपकी वहीं से निकलती हैं जहां पर आपको, इट्स जस्ट अबाउट माइंडसेट। व्हेन यू चेंज योर माइंडसेट, आपको सारी चीजें खुद ही चेंज हो जाती हैं, आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब मैं रोड पे खड़ी होके बोलूंगी, प्ले कार्ड्स लेके चली जाऊंगी, आप ये कर लो, मुझे ये मेरा हक दो, नहीं। यही 2 घंटे, यही 3 घंटे मैं अपने काम करने में क्यों ना लग जाऊं? मैं दुनिया को अपना काम दिखाऊं कि भाई मैं कर सकती हूँ, तो वो कम से कम बोलेंगे यस शी कैन डू इट, एंड शी इज डूइंग इट। शी कैन तो बाद में आएगा, शी इज डूइंग इट। सो ये एक फर्क है, वर्ड्स में, इज में, कैन में कितना फर्क है। देखिए, अब वो, आपकी बात से मैं बड़ा बड़ा 100% एग्री करता हूँ किंजल, एंड वेरी गुड एग्जांपल यू हैव गिवन। इधर मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा जो हमारे मुल्क की है। जी, आई एम श्योर आपने वर्ड्स एक नाम सुना होगा, राशिद मिन्हाज शहीद। जी, बिल्कुल। ठीक है ना, एयरफोर्स पायलट थे। उसी के साथ आपने एक और नाम सुना होगा, मरियम मुख्तार शहीद। जी, दोनों की एक ही फील्ड थी, दोनों एयरफोर्स के पायलट्स थे, बिल्कुल। लेकिन दोनों ने अपना अपना काम किया। हम्म, दोनों के जहाज क्रैश हुए, हम्म, ठीक है, लेकिन दोनों ने अपना नाम बनाया। ठीक है बिल्कुल। ना। तो डोंट यू थिंक सो, जो मेरे मेरे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि मैं जिस पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कहने को मैं अपने आप को कह लूं कि यार फैसल से इंटेलिजेंट कोई नहीं है, हम्म, या मैं ये हम्म, कहने को मैं ये कह लूं कि कींजर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं आता, कींजर भी ये सोच सकती हैं। लेकिन डोंट यू थिंक सो दैट इट इज मोर ऑफ एन इम्पोर्टेंट, जिसे कहते हैं दैट लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। of course it is, I mean, I agree on this 100%। ये सक्सेस, वो कहते हैं ना कि मेहनत छुप के करो कि कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है, अब शुरू में शोर मचा दो। आज तक आप मुझे बताएं, मतलब मुझे उस तरीके से, मतलब मैं किसी पे वो एलिगेशन नहीं कोई कर रही या कुछ इस तरीके से। मेरा अपना मानना है, मैं हमेशा अपने ऊपर बात रख के करती हूँ। मैं शायद चीख लूं, क्या होता है, एक औरत, मर्द कोई भी चीख ले। जब हमें एक इस्लाम से भी सिखाया गया है कि भाई आप सब्र करें, हर चीज के लिए आप उस तरीके से करें, तो उसी तरीके से मतलब मेरा होता है कि आप काम से मनवाएं लोगों को। जब काम बोलता है ना, तो लोग खुद ही चुप हो जाते हैं। फिर क्या औरत है, क्या मर्द है, क्या बच्चा है, क्या बड़ा है, कुछ नहीं आपको समझ में आता। इट्स जस्ट वही औरत जो चीख रही होती है, रो रही होती है, अगर वो कुछ करना शुरू हो जाए और अपना नाम बनाना शुरू हो जाए ना, आई हैव सीन इट, लाइक मैंने खुद विटनेस किए हैं लोगों को भी, खुद अपनी लाइफ में भी। लोग यूं बदलते हैं, सिर्फ यूं बदलने की देर होती है अगर आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। सर्टनली नहीं, मैं इस चीज के अंदर मैं क्रेडिट दूंगा। इनफैक्ट आप तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव भी हैं करंट गवर्नमेंट की, जिसमें जो काम सादिया निश्तर ने किया है, दैट वाज इट्स अ फिनोमिनल जॉब। किसी के बस का इतने आसानी से नहीं था कि, और 70 साल से, 70-75 साल से किसी ने या, इनिशिएटिव नहीं लिया था इस काम के ऊपर, और एक फीमेल ने लिया, और उसको इतना अच्छे तरीके से, एहसास प्रोग्राम है शायद ना जिसको वो कर रही हैं। And it's definitely we should acknowledge that the effort she has या, done. तो that's, अच्छा मुझे किंजर अब आप ये बताइए कि जो यंग लड़कियां हैं आपकी एज की, आपसे भी छोटी होंगी या कुछ आपसे बड़ी होंगी, जिनको इस तरह के चैलेंजेस फॉर एग्जांपल फेस करने पड़ रहे हैं, कि उनके अंदर पोटेंशियल है। मैं मिला हुआ हूँ, मैं जानता भी हूँ बहुत सी ख्वातीन ऐसी हैं जिनके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल मौजूद है, हम्म, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मैं यही कहूँगा अनफॉर्चुनेटली, उनको वो रिसोर्सेस कहें, या आप ये कहें सपोर्ट नहीं है। अपॉर्चुनिटी सपोर्ट, ओके, नहीं मिल रही है।
और तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हाउ दे शुड को, आई एम श्योर आपको भी एक चैलेंजेस आपने भी फेस किए होंगे, बट माशाल्लाह यू केम आउट, यू क्रॉस दी हर्डल्स, और आज आप यानी कि इतने बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। किस तरह से आप उनको इनकरेज करेंगे कि वो भी इस माइंड फ्रेम से निकल के एक उनको भी रिकग्निशन मिले? मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जस्ट वी शुड बी ओपन फॉर चैलेंजेस। जितना हम, ठीक है, जब एक हीरा बनता है तो वो हीरा ऐसे ही नहीं आता, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। उसको तराशा कहते हैं, इफ आई एम रॉन्ग, मैं बड़ी बुरी हूँ इसमें। तराशा जाता है, पूरा एक साइकिल होती है, उसको किस तरह पॉलिश करते हैं, उसका पूरा एक मैकेनिज्म होता है। किस तरह कोई भी चीज अगर आप देखो तो वो एक अच्छे तरीके से बनती है और उसके बाद वो चीज आती है, गोल्ड हो, हीरा हो, बड़े गंदे उस तरीके से फिर आके वो हीरा आके बाहर निकलता है। तो अपॉर्चुनिटीज नहीं भी होती, अब मैं मानती हूँ ऐसी बहुत सारी जगहें हैं कि नहीं होती, बट कोशिश करो, उसको ढूंढो। दुनिया सिमट के बहुत छोटी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, एंड आई एम श्योर कि अब हम ये नहीं कह सकते कि यार गांव में अब लाइट नहीं है, गांव में अब टीवी नहीं है, गांव में अब इंटरनेट नहीं है। वो जमाना नहीं रहा है। हम सब बराबर होते जा रहे हैं, और सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजें हमसे एक्सेप्ट करा ली हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी चीजें होती थी पहले, बट हम एक्सेप्ट करें। लाइक हम पहले, हमारे लिए टीवी पे आना बहुत बड़ी बात थी, किसी होस्ट के साथ आके इस तरह करना, बट अब हम इस तरह से स्ट्रीम यार्ड पे या कहीं पे भी हम जूम पे मीटिंग्स करते हैं। इट्स बिकम वेरी इजी, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेंस आ गई है हमारे अंदर बहुत सारी चीजों में। तो यस, अपॉर्चुनिटीज आपको खुद निकालनी पड़ती हैं। जब आपकी नीयत साफ होती है तो मंजिल भी आसान होती है, अल्लाह ताला आपकी खुद हेल्प करते हैं। मेरा यही मानना है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर होता है, व्हाट यू हैव ड्रीम्ड ऑफ, और उसको आप आगे चल के आप जब देखते हो तो वो जरूर पूरा होता है। मैंने 6 साल पहले, 7 साल पहले जो ख्वाब देखा था, मुझे नहीं पता था कि मेरी ऐसा कुछ होगा कि मैं इस पे ये चीज स्टार्टअप लूंगी। जो ख्वाबों की परवाज है, मैंने कभी नहीं सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरीके से कभी करूंगी, लेकिन वो चीज मैं 4 साल पहले सोचती थी, मैं लोगों के पीछे भागती थी, आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस, आई वॉन्ट टू स्टार्ट द स्टिचिंग प्रोग्राम, बट माई बॉस ही पास्ड अवे इन द प्लेन क्रैश। उसके बाद मुझे किक मिली और मैंने कहा नो, आई हैव टू स्टार्ट दिस, एंड इट हैज स्टार्टेड। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ होता है, आपको बस आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ती है। मैं तो सिर्फ यही एक मैसेज दे सकती हूँ। Last time when we were discussing, you told me about this ख्वाबों की परवाज. या Now I'm sure it's a very unique project और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है। तो जो हमारे लिसनर्स अभी हमें सुन रहे हैं या बाद में इसकी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ये हुआ, would you like to say something and take the opportunity of this platform to brief a little bit on this ख्वाबों की परवाज, what actually it is, what you do, and how can you facilitate more females through this project? देखें, ख्वाबों की परवाज तो जो प्लेन क्रैश था 22nd में PK8303, उसमें बहुत सारे लोग थे। मेरे बॉस थे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अब समझ आती हैं, जो मुझे उस टाइम पे वो कहते थे उस टाइम नहीं समझ आती, इंसान के जाने के बाद पता चलता है। तो खैर, इस तरीके से उस प्लेन क्रैश के बाद आई आई थिंक अ लॉट। मेरा जो है ना प्रोसेस, मैं बहुत चीज़ों को करती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। और मैं सोचती हूँ अल्लाह ताला पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं, अल्लाह ताला पता नहीं हमारे बहुत सारी चीज़ों को मैं उस पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ कि मैं अपने आप को कैसे ठीक करूँ। तो जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने वहाँ 100 लोग थे, किसी का इकलौता बेटा था, किसी किसी की पूरी फैमिली थी, किसी का पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई, कोई मॉडल थी, कोई क्या थी। तो वी जज पीपल, हम जज करते हैं, हमें नहीं पता। वहां 100 लोगों की डेथ एक जैसी हुई है, ठीक है, वहां अच्छे भी लोग थे, बुरे भी लोग थे, हमें नहीं पता अल्लाह ताला को क्या चीज पसंद आई, क्या चीज नहीं पसंद आई। हम लोग किस तरह से लोगों को जज करते हैं। सो दिस स्टार्टेड आफ्टर दैट, ख्वाबों की परवाज के जिनके
ख्वाब अधूरे रह गए थे जो उस प्रवास पे थे। तो हमने उस पे ये स्टार्ट किया और उसी के सदके हमने कहा कि ये सारा उसका सवाब भी मिले, और इस तरह से फिर हमारे साथ जब फैमिलीज कनेक्ट भी करती गई जिनके अपने बच्चे थे। एक फैमिली ने हमें मशीन डोनेट की, उसकी कबर डोनेट की, वो आंटी थी उसके अंदर। फिर एक इनका इकलौता बेटा था। दे स्टार्टेड ख्वाबों की परवाज वहीद के ख्वाब प्रोजेक्ट, उन्होंने दूसरी कॉलोनी में गजरी में स्टार्ट कर दिया। मैं उनसे कनेक्ट हो गई। मतलब इट्स अ प्रोसेस, मुझे नहीं पता था, मैं उनको जानती भी नहीं थी। मैंने ये स्टार्ट किया, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, मैं मिली, फिर हम लोगों का इतना आना जाना, उन्होंने मुझे बेटी बना लिया। फिर इन लड़कियों के लिए हम लोगों ने, उन्होंने भी 40-50 लड़कियां उनके पास है, मेरे पास 30 लड़कियां ग्रेजुएट डिप्लोमा कर चुकी हैं, सर्टिफिकेशन हम स्टिचिंग सिखाते हैं। अभी 30 लड़कियां और हैं। फिर उसके पीछे हमने तालीम, फिर एक डोनर ने दुबई से कांटेक्ट किया कि आई वांट टू स्टार्ट दिस तालीम थिंग। सो ये लिंक्स बनते गए। एक चीज हुई, दैट वाज द प्लेन क्रैश। और उसमें से अगर आप देखें ये सारी ब्रांचेस निकली, दैट वाज द आई वोंट से नेगेटिव थिंग बट पेनफुल थिंग थी, बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल था ना। बच्चे थे, फैमिली थी, मैं बड़ा अपसेट रही। बड़ा, मेरा तो दुनिया से बड़ा वो हो गया कि यार लाइफ का कुछ पता नहीं है, आपकी कभी भी हो जाए। यू डोंट नो लोग कैसे ईद करने के लिए आ रहे थे, बहुत सारी चीजें थी। बट आप उसमें से देखो कितनी सारी चीजें हुई, कितने लिंक्स बनते गए आपस में। एक डोनर दुबई बैठा है, उसने कहा यार मैंने मैंने आके ना तालीम का स्टार्ट करना है। उसने वीकेंड्स पे आके मेरे साथ ख्वाबों की परवास तालीम स्टार्ट किया, वो इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस देने लग गई। एक और फैमिली थी, उसने मुझे कांटेक्ट किया, उसने कहा यार मुझे गिजरी करीब पड़ता है, हम गिजरी में स्टार्ट करेंगे। मेरा अपना प्रोजेक्ट सुल्तानाबाद में। तो तीन चीजें तो आपके सामने यही आ गई। ख्वाबों की परवास पे रोटरी ने विजिट किया, उन्होंने मुझे लाइब्रेरी दी है, अभी मोबाइल लाइब्रेरी। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, रोटरी ने कहा कि हम ऑन बोर्ड आना चाहते हैं, रोटरी क्रीक जो है। उन्होंने तो इस तरीके से चार चीजें तो ये 6 महीनों के अंदर आपके सामने आ गई हैं। फिर डीएचएस सिटी ने मुझे कांटेक्ट किया, दे आल्सो वांटेड टू डू समथिंग। तो इसी तरीके से अगर आप देखो 4-5 चीजें आपके सामने, एक पेनफुल चीज थी और उससे ये सब कुछ स्टार्ट हो गया है। तो अब अल्लाह आगे देखते हैं कि किस तरह से और चीजों को लेकर आता है, कितनी और चीजें मिलती हैं। तो ये इसी तरीके से था और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स ओनली, क्योंकि मुझे खुद को भी अब जाके रियलाइज हुआ है कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ। मेरी नज़र में फेमिनिज्म बहुत डिफरेंट है, जो लोग दुनिया करती है वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। लेकिन औरतों के लिए मैंने किया है, बट मुझे लगता है कि अब मुझे मर्दों के लिए भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहिए। बिकॉज औरतों को हम अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, बहुत टैलेंट है औरतों में, बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा अगर औरतें एम्पावर हो गई तो मर्द घर ना बैठ जाए। तो हमें मर्दों के साथ भी उतना इक्वली काम करना चाहिए। नाउ आई रियलाइज, लाइक आई ऑलवेज वांटेड कि नहीं औरतों को सिखाओ, औरतों को सिखाओ। लेकिन जब आप कॉलोनीज में जाते हो, जब आप करते हो, तो ये एक अलग है कि यार जब औरत कमा रही है तो मर्द क्यों कमाए, वो भी मसले हैं। तो अब मैं चाहती हूँ कि कॉलोनीज में अब मैं मर्दों के साथ भी उन पे भी मैं जो है उनके साथ भी काम करें, उनको भी स्किल सिखाएं। सो इस उनको सिर्फ स्किल सिखाना नहीं है बेसिकली, उनको ये है कि यार हाथ मांगना नहीं है, सिर्फ मांगने के लिए नहीं करो, इन हाथों को अपने कमाने के लिए भी इस्तेमाल करो, अपने स्किल्स के लिए भी। तो बस ये चीजें उनको सिखानी है। मतलब मैं तो, मेरी तो कोई इतनी ऐसा औकात नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन अल्लाह ताला ही करवाएंगे जो भी। और आप जैसे लोग हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ हैं, जो इस चीज में मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह विल ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी। वो ख्वाबों की परवाज है या कोई भी हो, किसी भी तरीके से हो, एक नेक नियति से एक चीज स्टार्ट हुई, ऑब्वियसली इतनी इतने लोग उसमें थे। तो इंशाल्लाह। No, certainly. I mean, I wish you good luck. Or it's really a थैंक proud यू। moment that an entrepreneur and a आप तरह से सोशलिस्ट होके आप इस तरह से सोच रही हैं, एंड it's a moment of pride for all, not only for the females but also for the male members of the society also. Kinga, tell me something. आज मैं ट्रेवल करता हूँ हम्म। प्लेन में, तो उसकी कभी कभार मैं पायलट खातून होती है। अपने प्रोफेशनल लाइफ में मैं था, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खवातीन भी काम कर रही हैं एंड एट पार होके काम कर रही हैं। कोई ऐसा अब मुझे फील नहीं होता कि मुझे खातून से ज़्यादा आता है या उसको मुझसे कम आता है। हम्म। आपके पास एग्जाम्पल ऐसी भी रही है कि आपकी यूबीएल की पहली प्रेसिडेंट जो थी वो अब जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट मिस सीमा कामिल थी, जो अब डिप्टी गवर्नर हैं। हम्म। तो ऐसे ऐसे नाम आपके पास अब आते हैं, आपके पास बेनजीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो थी,
ठीक है, और ऐसे ऐसे नाम अब आपके पास आ रहे हैं। मैं प्रोफेशनल फ्रंट पे भी ज्यादा बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल खवातीन के अंदर, जैसे पाक बुरनाई की मैनेजिंग डायरेक्टर आयशा अजीज है। हम्म तो आई मीन जो एक एक ये पोजीशन समझी जाती थी कि डोमिनेटेड बाय द मेल्स हैं, अब वो पोजीशंस भी पे भी खवातीन आके बैठ रही हैं, एंड दे आर लिटरली परफॉर्मिंग वेल, और इट्स देयर परफॉर्मेंस इज रिमार्केबल। इसी तरह से आप छोटे लेवल के ऊपर चले जाएं, बैंक में चले जाएं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाएं, मल्टीनेशनल, वहां भी खवातीन इक्वली काम कर रही हैं मेल जेंडर के साथ, ठीक है। तो अब विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सेप्ट डोंट यू थिंक इज यूजलेस नाउ? माशाल्लाह आप आ तो गई हैं, खवातीन कर तो रही हैं। हाँ मेरी सिस्टर, मेरी बिल्कुल अपनी बहन है, शी इज माशाल्लाह वर्किंग फॉर अ प्राइवेट स्कूल, शी इज एन एजुकेशनिस्ट। वो कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। और ऐसा है कि मैं मेरी अपनी, अगर आप फैमिली के अंदर लें, जो मेरे कजन्स हैं, सब लड़कियां प्रोफेशनल अपने काम कर रही हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब कर रहे हैं अपनी जगह के ऊपर। हार्डली कोई घर पे बैठी हुई खातून है। तो अब इस डोंट यू थिंक से कॉन्सेप्ट अब खत्म हो जाना चाहिए, कह के विमेन एम्पावरमेंट हो तो गया, बस सही है। नो, अब विमेन ग्रूमिंग की तरफ जब कलेक्टिव, कोई नहीं आप समझते, मेरा व्यू ये है कि अब हमें इन जेंडर बायसेस से निकल के अब जेंडर ग्रूमिंग की तरफ जाना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ वो लड़की है या लड़का है। अगर आपको इस मुल्क में लड़कियां भी अंडर पावर्ड हम्म मिलेंगी, तो हो सकता है आपको मर्द भी अंडर पावर्ड मिलेंगे, जिन बेचारों को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ग्रो करने की। मेरे ख्याल में अब अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में जाएं, सेल्स की फील्ड में जाएं, एचआर में जाएं, तो उनको लड़कियां ही चाहिए। अगर आपने स्पेशली देखा होता है कि हायरिंग पोजीशन फॉर फीमेल मार्केटिंग मैनेजर हो गया या सेल्स हो गया, तो मैं ज्यादा मुझे भी अभी लगता है अब वुमेन एम्पावरमेंट इज, आई थिंक इट्स डन नाउ। उस पे जितने हमने एग्जैक्टली। लेक्चर्स देने थे, जो करना था, इट्स डन। बट अब दोनों को इक्वली कैसे लेके चलना है? अब ये भी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही नाइंसाफी पे उतर जाएं, मर्दों के साथ बिल्कुल ही, क्योंकि मैं भी अब देखती हूँ कि मार्केटिंग में उनको लड़कियां चाहिए। मैं रियल स्टेट में हूँ, हम हायर लड़कियों को करते हैं, हमें लड़कियां चाहिए। ठीक है, रियल स्टेट में पहले लड़कियां नहीं आती थी, अब आ रही हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां आ रही हैं। इसी तरीके से मतलब हर जगह अब लड़कियां ही हैं। जो हम काम कहते थे ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, वहां लड़कियां काम कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा लड़कियों को मिल रही हैं। सो वुमेन एम्पावरमेंट तो चला गया, बट नाउ इट्स टू सपोर्ट वुमेन नाउ। जब वो इस तरीके से, मैं यहाँ पर आई ऑफ द टॉपिक तो नहीं होगी, बट इट्स जस्ट पॉप्ड अप इन माय माइंड। एक एग्जांपल आ रही थी गाड़ी की। जब मैं जो माइंडसेट मैं बताना चाहती हूँ, जो मैं मर्दों को सिखाना चाहती हूँ, मर्दों में औरतों के साथ बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, कंपटीशन अगर आप देखें, एक औरत जब गाड़ी चलाती है ना, तो मैं जो फेस करती हूँ, तो जब मेरे मेरे साथ कोई लड़का या कोई मर्द या कोई ड्राइवर ही मैं कहूँ गुजरता है, जब वो देखता है औरत है ना, वो स्पीड बढ़ा के बड़े टशन में हमें क्रॉस करके जाता है। यू नो आप नोटिस कीजिएगा, मैं बहुत नोटिस करती हूँ, क्योंकि सिंस आई ड्राइव, आई एम अ वुमन, तो मैं बड़ा इस चीज को नोटिस करती हूँ। मैं अगर कहीं यहाँ खड़ी हुई हूँ ना इंटरसेक्शन पे क्रॉस करने के लिए, तो जब वो जैसे देखता है ना लड़की, वो बड़ी जगह नहीं देगा, स्पीड देके क्रॉस करके जाएगा। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ। ये माइंडसेट चेंज करना है। औरतें एम्पावर हो गई हैं, वो आ भी गई हैं फील्ड में, अब उन्हें काम करने दो, उनको अपने हिसाब से काम करने दो। औरत इस ये एक मिथ है, या लोगों के लिए चीजें हैं कि यार औरत गाड़ी चला रही है ना, देखना लगाएगी जरूर। औरत चला रही है ना, तभी तो स्लो चला रही है। अगर आप गलती से लड़की औरत स्लो चला रही हो, तो हम पीछे से कहते हैं अरे औरत है, तभी तो देखो किस लाइन में जा रही है। तो ये बहुत सारी चीजें, अब यार अगर वो अब मैदान में वो आ गई हैं, अब उन्हें खेलने दो, उन्हें आगे बढ़ने दो, उनके सपोर्ट सिस्टम बनो। नहीं सिर्फ देखिए, बाहर उसके अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, आई आई टेंड टू अग्री विद इट 50%। लेकिन देखिए, या कुछ जॉब्स दुनिया में ऐसी होती हैं, अब आप ये देख लें ना, कि जो जो जिस पे जैसे जैसा खाना मेरी अम्मी बनाती है, वो मेरे अब्बू नहीं बना सकते। आपके अब्बू नहीं बना सकते, लेकिन कोई और मर्द तो बना सकता है। नहीं, बिल्कुल बना सारे 5 स्टार होटल के जो चीफ नहीं, शेफ अब होते हैं, अब सारे अब तो मर्द आप बना अम्मी सकते हैं। अब्बू को कंपेयर कर रहे हैं ना आप, लेकिन हम तो औरत मर्द की बात कर रहे हैं। जैसा जी खाना आपकी ठीक है, अम्मी लेकिन बना। आपको बता नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप जस्ट कम टू द पॉइंट ना। अब आप क्रिकेट का मैच ले लें, जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, है हम्म ना, जो जो जो
मेल टीम है हमारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट, उसका 50 ओवर का होता है, लेकिन खवातीन का 20 ओवर्स का होता है बिकॉज ऑफ द स्टेमिना। जैसे आप टेनिस को ले लें, मर्दों के 5 सेट होते हैं, खवातीन के 3 सेट का टूर्नामेंट होता है। ठीक है, वहां पे तो हमें ये चीज देखें नोट करनी पड़ेगी कि कहाँ के ऊपर, जैसे ये अल्लाह ताला की खुदादाद एक सलाहियत है कि मर्द का स्टेमिना लड़की से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन उसको मैं ये कहता हूं कि जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं ना, कि जैसे अब आपने बोला कि अब आप ये चीज नोट कर रही हैं कि सेल्स में और मार्केटिंग के अंदर लड़कियां आ रही हैं, जो कि पहले सही बात है बिल्कुल कि आज से 5 6 7 10 साल पहले सेल्स में कभी भी लड़कियां नहीं आती थी, क्योंकि उनको वो फील नहीं होता था कि वो मर्द हजरात से इंटरेक्ट करें डायरेक्टली या फील्ड के ऊपर जाएं। वेल आई एम सीइंग यू एज अ वेरी एक्सेप्शनल लेडी जिसको बड़ा शौक है फील्ड पे जाके काम करने का, एंड देन यू आर अ रोल मॉडल टू द लेडीज जो मजीद आए इस फील्ड के अंदर, माशाल्लाह। तो वही मेरा कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन इज कि अब इसको दोनों को साथ मिला के कैसे चला जाए। अब यानी कि वो जिसे कहते हैं ना, वो एक डिवीजन को खत्म किया जाए कि किंजर जो है वो एक खातून है, फैसल जो है वो एक आदमी है, हम दोनों ने अपनी अपनी कर ली जो करनी थी, अब दोनों को इवनली प्लेइंग फील्ड मिल गई है। अगर एक बैंक में एक बैंक में लेना किसी कंपनी के अंदर एक इंटरव्यू कॉल आती है तो किंजर हैज गॉट द सेम एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस कंपेयर टू फैसल, अब वो एक इवनली प्लेइंग फील्ड है, कौन अपने आप को इंटरव्यू में ज्यादा प्रूव कर देता है। अब इन दोनों को जेलअप करके कैसे चला जाए। देखिए अब वो तो अब ये जेंडर बाइज्म को खत्म करके क्या, छोड़ो अब इस चीज को, वी हैव गॉट आवर मैं राइट्स, वही वी हैव कह रही गॉट हूँ आवर कि प्लेस। जेंडर तो अब बायसनेस वो तो खत्म ही हो चुकी है ना। अब लड़कियां तभी तो आगे आ रही हैं। पहले बैंक में कहते थे लड़कियों का काम करना सही नहीं है, बहुत सारी लड़कियां बैंक में ही काम करती हैं। पहले हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती थी, कुछ नहीं आता या तो ट्यूशन पढ़ा लो या स्कूल में टीचिंग कर लो। ठीक है, अगर आप 7 8, आई स्टार्टेड माय करियर विद स्कूल, मुझे था कि बड़ा सेफ है, मेरे घर वाले अलाउ कर देंगे, कंपनी में तो नहीं करेंगे। या बैंक में आप करते हो, लेकिन बैंक में भी बड़े इश्यूज होने लग गए थे, कहते हैं यार लड़कियों, मेरा भाई अभी तक कहता है इज अ बैंकर कि नहीं लड़कियों के लिए बैंक अच्छा नहीं है, लेकिन लड़कियां बहुत कर रही हैं अच्छी अच्छी पोजीशंस में। तो इट डिपेंड्स ऑन यू आल्सो एंड ऑन द, देखिए एनवायरनमेंट मैं तो कहूंगी मर्दों के लिए भी अब सेफ नहीं है। अगर आप इन्वायरमेंट की बात करते हैं और हम बहुत सारी चीजों की करते हैं, अब तो वो चीजें खत्म हो चुकी हैं, बट यस औरतें एम्पावर हो चुकी हैं। अब वो जब मैदान में आ चुकी हैं तो अब तो एक कॉम्पिटिशन है, लेकिन हम लोग, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब ये चीज है कि यार ये लड़की है तो हम इसको ना दें। अब वो जो आप मुझसे टेनिस या फुटबॉल या हम हॉकी की बात करते हैं, ये वो है कि शायद हम पाकिस्तान में से 100 लड़कियों में से 10 लड़कियां होंगी जो फुटबॉलर बनना चाहती होंगी। जो 90 लड़कियां होंगी वो तो कंपनीज में काम करेंगी ना। तो उनमें तो वो तो 10 तो चलो एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन जो 90 लड़कियां हैं, जो 90 हमारा रेशियो बचता है, वो तो काम कर रहे हैं। मुझ जैसी कितनी लड़कियां जो रियल स्टेट में काम करती हैं, मैंने 2 1.5 2 साल बड़ी मुश्किल मुझे लगी मर्दों के बीच में काम करना, अजीब तरह के मर्द, आपको पता है किस तरह, बहुत सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। लेकिन मैं बोल्ड होती गई, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं चाहे किसके साथ बैठूं, कहाँ बैठूं, कैसे बैठूं, मैं पॉलिश हो गई ना, मैंने अपने ऊपर काम किया, आई लर्न, मैंने तो उनसे बात। एट द बैक ऑफ द माइंड आप ये सब क्रेडिट देना चाह रहे हो कि मर्दों ने ही आपको स्ट्रॉन्ग किया, राइट? एग्जैक्टली मैं कभी भी मर्दों के उसमें नहीं रही हूँ कि नहीं जी मर्द ये हैं या मैं औरतें ऐसे कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। मर्दों की एक अपनी वैल्यू है। देखें आप, अगर आपके, अब मैं, आपने जैसे अपने अब्बू और उनका एग्जाम्पल दी खाने पकाने की, आपके अब्बू नहीं बना सकते, आपके अब्बू ने ट्राई किया, तो क्रेडिट तो आपकी अम्मी को ही जाता है ना, वही उन्हें बताएंगी ना जी खाना ऐसे पकाएं। अगर खुदा ना खास्ता कल को वो बीमार होती है, कुछ होती है और कोई नहीं है, तो आपके अब्बू बनाना चाहते हैं, सो हु इज गाइडिंग, तो वो उसी से सीख रहे हैं ना। तो हम अगर इस चीज को छोड़ दें कि यार ये औरत है, मैं मर्द हूं, मैं औरत के पास में, जैसे इसलिए मैंने आपको गाड़ी की एग्जाम्पल दी उस टाइम कि ये कंपटीशन आ जाता है, ये हमारा माइंड सेट है। ये शायद सब में ना होता हो, थोड़े तो लो क्लास होते हैं या मिडिल क्लास, उनमें शायद आता हो, अब इलीट क्लास में ना आता हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब हम, अगर आई एम अ वर्किंग गर्ल, तो मैं अपनी औलाद चाहूंगी कि मुझे वो नहीं होगा मेरी बेटी पढ़े, मेरे बच्चे पढ़ें, जितना जैसे मेरा बेटा हो वैसे मेरी बेटी हो। तो Ginger, मैं I've got चेंज, two questions which I would like you to answer on that. I've got two questions from Muniza. या One she's asking is, what if your surroundings don't allow us to do?
whatever they want to do. Secondly, is women empowerment as is at par in Pakistan as compared to the international world? वेल व्हाट इफ योर सराउंडिंग्स डोंट अलाउ अस टू डू का तो मैं यही कहूंगी कि देखिए सराउंडिंग्स आपको बहुत सारी चीजें करने से मना करती हैं बट वी डू बहुत सारी चीजें हमारी फैमिली हमें रोकती है बट वी डू छुपके ही सही या किसी तरीके से चीज जब आप अच्छी चीज कर रहे हो तो आप क्यों नहीं कर सकते हो अगेन यू हैव टू अपनी अपॉर्चुनिटीज आपको जहां प्रॉब्लम होता है रिमेम्बर दैट द सोल्यूशन इज ऑलवेज देयर अगर मेरे दिमाग में मसला है तो मेरा दिमाग ही मेरा मसला हल करेगा मेरा मेरा जो सोल्यूशन है वो मेरे दिमाग में ही है दिस इज अनदर क्वेश्चन आई गेस Yeah, like women, if a woman mentions a mard to be ajib, that's being biased too. Do you agree to it? अब अजीब वो किस वे में कह रहे हैं वो तो मैं नहीं कह सकती एज इन लाइक इफ अ वुमन मेंशंस अ मर्द अब अजीब आप उसकी पर्सनालिटी को कह रहे हैं तो वो तो आपका एक पर्सनल वो है कि अगर आपको वो अजीब लग रहा है बट यस अगर हम उसको डिग्रेड कर रहे हैं और अगर हम कह रहे हैं कि नो आई एम द बेस्ट एंड यू आर नॉट द बेस्ट एंड दैट मीन्स हम बायस ऑब्वियसली हैं या अगर आपको ज्यादा अटेंशन मिल रही है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बीइंग अ गर्ल आपको सिंपैथी भी बहुत मिलती है आपका थोड़ा हल्का हाथ भी रखा जाता है आप लोगों को देखा जाए बैंक में 9-9 बजे तक रोका जाता है लड़कियों को 6 बजे भेज भी देते हैं तो नो एक ये भी है और बोनस भी बराबर का मिलता है। बेशक बिल्कुल आप हमें तो एक इज्जत तो एक्स्ट्रा दी जाती है ना पर और मैं हम यही कितने बात कर जेनरस हैं, इसकी तारीफ नहीं कर रही। तो मैं वही तो बात कर रही हूँ कि इस चीज में मैं तो ये कंपैरिजन नहीं लेकर आती इस तरह का कि यार नहीं उसको ज्यादा मिल रहा है अपने काम से मनवाना है मर्द हो या औरत हो इट्स योर वर्क चल, दैट स्पीक्स we are running out of time. Kinjar, any last words? Would you like to say something? And Well, I would just say कि this topic is very close to my heart. Obviously बात है मैंने बड़ा struggle किया और मुझ जैसी 1000 लड़कियां होंगी शायद लाखों में होंगी जो struggle करती होंगी तो जो जहां जहां मेरा मैसेज पहुंच रहा है मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हमेशा अपनी कोशिश करते रहो लोगों को देख के नहीं अल्लाह को देख के करो क्योंकि जब हम अल्लाह को देख के काम करते हैं तो वसीला भी वही बनाता है और रास्ते भी वही बनाता है जब हम लोगों को देख के करते हैं तो रुकावटें आती हैं और लोगों को जब पता चलता है कि again there's a distortion in your voice. या ना इज इट फाइन नाउ अभी भी डिस्टोर्शन है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो हेलो बेटर नॉट क्लियर। हाँ जी, थोड़ी बेटर क्लियर हुई थी। So I'm removing my headphones. या सो बस यही मैसेज है मेरा कि आप मेहनत करें और 1 साल नहीं 2 साल नहीं 3 साल नहीं 4 साल नहीं जब भी है उसका फल आपको ज़रूर मिलना है और लक भी होता है किसी का लक जल्दी काम करता है किसी का लेट काम करता है बट मेहनत हमेशा काम करती है सो वेदर यू आर गर्ल और अ बॉय और व्हाटएवर जिस तरीके से आपने करना है हमारी दुनिया में इस दुनिया में हमारे मुल्क में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं सिर्फ अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करो कहीं ना कहीं से रास्ते निकलेंगे अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी Perfect. Thank you, Kinjar. थैंक यू Uh, सो my emphasis on as a concluding remark today is for the ladies. Me being from the male gender side, it is the utmost responsibility of all our male genders to promote and support our female gender ladies, our colleagues, whether they are at their workplace, whether या they are anywhere in the sphere of life they are. We should support them, we should encourage them, we should encourage our फैमिली में जो ख़वातीन हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए. लेट देम डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू. And even if they are more successful than you yourself are, you should be happy at it rather being jealous और उस पर क्रिटिसाइज करना. और अगर उनसे कभी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर या बिजनेस करते हुए कोई नुकसान हो जाए तो लेट्स नॉट क्रिटिसाइज ऑन दैट, रादर इनकरेज ऑन दैट. या और अगर वो कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रही हैं तो उनको लेने दें. और अगर आप समझते हैं कि आप उसके अंदर कुछ अपनी बेहतरी डाल सकते हैं तो चिप इन योर पॉजिटिव पार्ट इनटू देयर लाइफ रादर बीइंग सिनिकल. और ख़वातीन को मेरा सिर्फ एक मैसेज है, ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे उसमें मेरी अपनी फैमिली की ख़वातीन हो या कोई भी हो, देयर इज़ अ वर्ड फियर, FEAR. तो ख़वातीन उसको कैसे लेना चाहें उनकी मर्जी है. FEAR वर्ड है. ईदर फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन,
Yeah, face everything and rise. The choice Yeah. is yours. Thank Thank you, you. Kinger, for coming on my show today. It was really, really nice talking to you, and the experiences and that you have shared with us. और जो as usual you are a motivational speaker. I am sure आपने इस channel के through में काफ़ी ख़वातीन को motivate किया होगा. I hope. And looking forward seeing you again on this channel with a Thank new you. topic. Inshallah. And once again, thank you very much. And I wish you best of luck in all your endeavors which you are doing. Thank you. Thank you very much. So nice of you.